Now first you tell me, I think you completed your exercise 3.4. Yes. Yes, sir. Okay. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So today we start our next exercise 3.5, because you know that the cross multiplication method already deleted by CBSE. Okay. There is some important concept in exercise 3.5. Okay. So Yes, sir. look at here, example number 15. In example number 15, read the example. You all having a visible screen now. Write in a chat box. Some students are still joining, still. Okay. Okay. Yes. Yes, read the example number 15. For which value of P does the pair of equation given below has unique solution? It means, you know that when the pair of linear equation has unique solution, what is the relationship we have? A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Yes. That's why here you see that A1 upon A2 and B1 upon B2, we apply this relationship of coefficients, right? And we get P is not equal to 4. P is not equal to 4. Look at here. After solving this equation, we get P is not equal to 4. It means what? For all value of P except for the given of pair equation have unique solution. Understand? Understand? Are you getting my point? Example number 15. Please write in a chat box. Okay. Quick responses. Very nice. Very nice. Okay. Now listen. In the next example, that is example number 16. What condition here we have? Again the k is given here. Unknown value k. We need to find out k here. Right? And the condition given here, infinite many solutions. Infinite many solutions means what? You know that infinite many solution have when A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Yes or no? So same we apply here and we get, look at here, K. First we compare these two. K square is equal to 36. First by comparing these two and we get plus minus 6. Again in the second we compare these two and we get again k is equal to 0 and k is equal to 6, right? But you know that the value of k, that is k is equal to 6, satisfy here. अगर हमने k is equal to 0 यहाँ पे रख दिया, look at here, अगर हमने k is equal to 0 यहाँ रख दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? k is equal to 0 रखने से वेरिएबल हट जाएगा, यहाँ से ओनली सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी. अंडरस्टैंड? तो इसलिए k is equal to 6 here satisfy this equation and having infinite many solution. By putting the value of k is equal to 6, we can verify that here we get A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Understand? Understand? Any doubt in these two examples? Example 15 and 16. I hope you understand. Okay, very good, very good.
Okay. Now we will discuss the exercise 3.5. Now you open your practice copy and do this question number second, first part, same as example. आप इसको अपनी कॉपी में करो, प्रैक्टिस कॉपी में, और ये प्रैक्टिस कॉपी बाद में चेक होगी एट द टाइम ऑफ रीओपन. अंडरस्टैंड? सो प्लीज do your work regularly in practice copy as well as homework copy. Understand? Because in class 10th you have an internal assessment marks, 5 marks each subject. Understand? So please do your work regularly. बेटा यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. दीवा, अंडरस्टैंड? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस गिवन है यहाँ पे. मींस 2 अपॉन a माइनस b. Yes, you have a 2 minutes. Try to solve this question number second, first part. Infinitely many solution means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Understand? So what will we get here? Look at here. 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. Okay. 2 upon a minus b, okay, that is equal to 3 upon a plus b, that is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. Now look at here, students. Here we get, yes, here we get 3, yes. Now first you compare these two, and find the equation in a and b. हमको इन दोनों को सोल्व करना है, फर्स्ट टू को, और a और b में एक इक्वेशन आएगी हमारे पास. ऐसे ही आप सेकंड लास्ट टू को कंपेयर करो और आपको एक इक्वेशन मिलेगी a और b में. वी गेट 2 इक्वेशंस हियर इन टर्म्स ऑफ a एंड b. हमको a और b में यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगी. यस, पेयर इक्वेशन. देन वी कैन सॉल्व टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b by using elimination method. Understand? Correct. So a minus b is equal to 0. First equation we get. Sumani, I am not asking about the answer. Answer is already given in the answer sheet. But how we solve, the method is important. Understand? Because यहाँ पे हमको a और, yes, very good Julia. Now solve these two equations. Okay, students, if you having any doubt, unmute your mic and ask me. But yes, only those students who having a doubt, please unmute your mic. No one? Very good.
Very nice, very nice. It means you getting the point. You getting the concept. Very nice. Okay, okay. So क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट आपको अभी कॉपी में कर लेना, बाद में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, राइट. ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क कॉपी में करनी है, एक्सरसाइज 3.5. ओके, बट मेथड कौन सा यूज करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन या इलिमिनेशन. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करना है. अंडरस्टैंड. नाउ हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस. ओके, इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करें या आज कर लें. ओके राहुल, ओके टुडे. ओके, ये बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ओनली ज्वाइन करके सुन रहे हैं क्या, ओनली. ओनली 5 और 6 स्टूडेंट्स गिव देयर रिस्पॉन्सेस. बेटा ये एब्सेंट लग रही है जो रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहा उनकी, ये भी ध्यान रखना. ओके, मैं डेली आपको बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट लेके बैठा हूँ. अंडरस्टैंड. आपकी क्लास लिस्ट है मेरे पास. अभी आपको मैं वीडियो ऑन करके दिखा सकता हूँ. वेट. Look at here. It's your class list. Okay. Yes, sir. Okay, yes. Now the first question is, a part of monthly charges is fixed and the remaining depends on the number of days. बिल्कुल वो लाइब्रेरी जैसे ही क्वेश्चन है जो हमने लीडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, राइट. तो फिक्स चार्जेस को हम क्या ऐड कर लेंगे, x रुपीस, एंड पर डे जो चार्जेस है वो y रुपीस. ओके, करेक्ट. सो प्लीज ट्राई टू फॉर्म इक्वेशंस बाय गिविंग कंडीशंस. 20 डेज के आपको 1000 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो x प्लस 20y इजिकल टू 1000. वेरी गुड. और सेकंड हो जाएगा x प्लस 26y इजिकल टू 1180 रुपीज. करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो लेट स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है. प्लीज टेक केयर, डू नॉट राइट द इक्वेशन डायरेक्टली विदाउट लेट स्टेटमेंट. अंडरस्टैंड. ओके, वेरी नाइस. नाउ इसको आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर लोगे. ओके, यस. मैं जिस कौन है, जोयल, प्लीज अनम्यूट योर माइक. जोयल. यस सर. यस सर. ओके जोयल, ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई दोनों, है ना, फर्स्ट पार्ट की. तो हाउ यू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड हियर, व्हाट इज द स्टेप्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, प्लीज टेल मी. Sir, we subtract equation 1 from 2. Why Equation directly? 2. Why? First we check that the one of the variable coefficient of the one of the variable is equal or not. Yes or no? Yes sir. If Yes, sir. not, what will we do? If not, so we multiply both by their Suitable coefficient. to correct? get same coefficient. Yes. So it means the first step, if we not having the coefficient equal of any variable in the both equation, then we choose the suitable coefficient of constant value, right? To get Yes sir. the one of the coefficient equal. Yes. And then Yes, sir. what we see, the sign of the equal variables, Yes. equal coefficient. अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम? Sir, equal kind. हाँ, अगर दोनों के साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है, कोफिशिएंट इक्वल हो गए बट साइन डिफरेंट है, देन
Then we क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट या ऐड? sir add. ऐड करेंगे. यस, टू एलिमिनेट द वेरिएबल. Yes. अगर ऑलरेडी डिफरेंट है साइन तो हम लोग क्या कर देंगे उसको, इक्वेशंस को ऐड. और अगर दोनों के साइन Add. सेम है देन वी सब्ट्रैक्ट. So we separate. अंडरस्टैंड? ताकि सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन का जो भी सब्ट्रैक्ट होगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास अपोजिट साइन मिल Yes, जाएगा और वो वेरिएबल क्या हो जाएगा? एलिमिनेट. Yes, sir. ओके. नाउ सेकंड पार्ट को ट्राई करो, फटाफट इक्वेशंस फॉर्म करो. फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन आप कर चुके हैं प्रीवियस उसमें भी. लेट बी द फ्रैक्शन x अपॉन y. करेक्ट? वेरी गुड. न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को y मान लो. अंडरस्टैंड? सो दैट वी गेट फ्रैक्शन x अपॉन y. नाउ अप्लाई द कंडीशंस गिवन हियर. Sir, x upon y minus 1. x कौन बोला ये? x upon, when we subtract 1 from numerator तो x minus 1 upon y is equal to 1 upon 3. Understand? x upon x minus 1 आएगा ना फर्स्ट. Yes sir, वही बोला. Sir, x upon y minus 1. x minus 1 आएगा. x minus 1 subtract 1 Sir, from वही कह रहा हूँ. numerator. Understand? Upon y. Yes sir. That is equal to 1 upon 3. This is our first equation. और सर सेकेंड x upon y और प्लस 8 डिनोमिनेटर में. हाँ, क्या डिनोमिनेटर? x सर upon y प्लस वो 8 होगा करेक्ट. और इज इक्वल्स टू 1 upon 4. 8 is added to its denominator तो x upon y plus Yes, 8 हो sir. जाएगा. क्या हो जाएगा? x Yes, sir. upon x upon y प्लस 8. that is equal to 1 by 4. यस सर. यस सर. ओके. तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x upon y plus 8 that is equal to 1 by 4. yes, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन. एनी डाउट? ये 3x माइनस 3 कहां से आ गया चक्षणा? स्ट्रॉन्ग कौन सा आ गया तुम्हारा ये? अच्छा, तुमने इसको वो कर दिया क्या, सिंपलीफाई? ओके ओके. किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है सेकंड पार्ट में? ओके. नाउ थर्ड पार्ट देखो. Yes, scored 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for first you. Yes, let statement बताओ फटाफट. How many questions were in the test? तो हम लोग क्या करेंगे? What is let statement? Let with the number of correct answer. Let right answer be X Correct. And wrong answer be Y. and number of Y. wrong answer Y. Wrong answer be y. Correct. And total questions be x plus Total y. question are x plus y. Okay. But अभी इक्वेशंस क्या फॉर्म होगी यहाँ पे देखो. 3x minus y. 3x minus 3x minus y. minus y. सारे एक साथ मत x बोलो. minus y is equals to 40. Wait, Sania, open your mic. Are you listen me? एब्सेंट लगानी पड़ेगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा. Yes, sir. बेटा इतनी देर से रिस्पॉन्स. Yes, sir. यस बेटा, ये माइनस क्यों किया इस थर्ड पार्ट में हमने? Our network नहीं आ रहा है. ओके. वाई वी सब्ट्रैक्ट हियर, वो 3x माइनस वाई क्यों किया यहाँ पे? माइनस वाई क्यों किया? यस. Sir, because wrong answers के हाँ, रॉन्ग आंसर्स के. sir wrong answer के लिए because wrong answer का statement y किया है तो Because whenever we
टोटल द मार्क्स ना, हम लोग जब भी मार्क्स को टोटल करते हैं तो वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट राइट टू रॉन्ग आंसर्स, करेक्ट? Yes, ध्यान sir. रखना है पे। ओके, वेरी नाइस। ओके, दोनों इक्वेशंस फॉर्म हो गई आपकी सबकी? थर्ड पार्ट Yes, की दोनों sir. इक्वेशंस फॉर्म हो Yes, गई? sir. Yes, sir. तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now the very Yes, important question, very important question for exam point of view, that is fourth part. मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपने अपने माइक अनम्यूट कर लो पहले। ओके, मैं इसको यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको शो करता हूँ। लुक एट हियर, देखो ये आपका प्लेस ए है और ये आपका प्लेस बी है। ओके, ये 100 किलोमीटर गिवन है आपको। कितना गिवन है? 100 किलोमीटर। ओके, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब जो फर्स्ट कंडीशन है, उस फर्स्ट कंडीशन में कार एक यहां से स्टार्ट होती है और एक कार यहां से स्टार्ट होती है सेम टाइम पे, है ना? अब सपोज करो वो यहां आके कोई सी पॉइंट पे आके इस पॉइंट सी पे आके मीट कर रही है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स? 5 आवर्स, राइट? नाउ इन द सेकंड कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में आती है, राइट? और 1 आवर में मीट करती है। पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है वो डिस्कस करते हैं हम। और इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है देखो आप। लेट बी द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार दैट इज x किलोमीटर पर आवर, अंडरस्टैंड? एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार बी ले लो और कार ए ले लो, कुछ भी ले लो, राइट? इसकी जो स्पीड है वो हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। ओके, नाउ द किलोमीटर पर आवर में अभी यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, चलो। नाउ सिमिलरली इसकी ले लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A to reach the point C in 5 hours? Who tell me? Please raise your hand. Yes, Sunanda. Unmute your mic and tell me. So Yes? when the car will move in the same direction, the equation will be formed No, as x इक्वेशन नहीं बोल minus रहा हूँ y. मैं इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वेशन। मैंने आपसे पूछा what distance covered, how much distance covered by the car A to reach the point C from A in 5 hours? 5 hours में कार A कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस? So 5x. वेरी गुड, The यस यस, So 5. 5x. Why? Because what is the d? Distance क्या होती है? Distance is equal to speed into time. Yes or no? Speed into time. Yes. Yes or no? मैं बोलने की करती हूँ। Please Yes, unmute sir. your mic. Yes, sir. Okay. तो स्पीड क्या Yes, क्या, sir. क्या थी यहाँ पे? स्पीड x और टाइम कितना लगा उसको? X kilometer per hour. 5। तो 5 hours. 5x किलोमीटर कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A? 5x किलोमीटर इन 5 hours. Yes or no? अरे होगा Yes, नहीं? sir. Yes, sir. Yes. Sir. सिमिलरली कार B जो पॉइंट B से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पे, वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 5y kilometer. 5y. 5 kilometers. 5 kilometer. ओके 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 ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई ना? नाउ अब देखो इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती है। नाउ हमको पता है एक्चुअल में डिस्टेंस जो A ने चली वो AC चली, कार A ने, और कार B ने जो चली वो BC डिस्टेंस चली। यस और नो? अब हमारे पास डिस्टेंस है वो AB है, तो व्हाट इज AB? AB is equal to what? Look at the diagram. AB is equal to AC minus BC. AC minus BC. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. What is Yes, AB given sir. here? AB is given here 100 kilometer, right? 100 kilometer. What is AC? We calculate AC here. What is AC? 5x.
Yes or no? 5. 5x r. That is Yes, sir. 5x. minus Now, what 5y. is 5x what is minus Minus 5y. 5y. minus 5y. Now इसको reduce कर लो 5 से divide करके, तो we get X minus y is equals 20. y is equal Minus X to minus y is equals to Minus y 20. is equals to 20. very good, very good, very good. Okay, this is our first equation. Understand? Yes, sir. Now, अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई कि कैसे आई, तो आपको सेकंड भी इजीली आ जाएगी. राइट? एनी डाउट? किसको कोई डाउट है? प्लीज unmute your mic and ask me if you having any doubt. No, no one. Okay. Now listen. How we form the second equation? In the second equation, look at here. ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है. अंडरस्टैंड? सपोज वो यहां किसी पॉइंट पे आके मीट कर गई, इस पॉइंट पे सी पे, सेम डायरेक्शन में चल रही है और 1 आवर में मीट करा है. तो आप बताओ ए कार जो है वो 1 किलोमीटर में एसी कितनी डिस्टेंस होगी? बताओ आप. व्हाट इज डिस्टेंस एसी? X kilometer. वेरी नाइस. X kilometer. X kilometer. What is distance covered by car B? Y Y kilometer. 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 Very Y nice. Y kilometer. तो सेकंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस y, जो दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कवर Equals to 100 kilometer. इक्वल टू 100 Equals to kilometers. 1. किलोमीटर. दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजीली इसको एलिमिनेट Yes, करेंगे. ओनली जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा. लिसन, अब आप मुझे आयुषी महेश्वरी. यस आयुषी. ओके, एब्सेंट है आज आपके. ठीक है. हर्षित कालेर. Yes, sir. बेटा ये दो इक्वेशन आगे समझ में आई आपको? सर एक बार वो किसी का फोन आ गया था सर, इसलिए एक बार बहुत अच्छा एक्सक्यूजेस है बेटा. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके. जूलिया. Yes, sir. ओके, आपको ये इक्वेशन समझ में आई कैसे बनी? Yes, sir. ओके, आप इलिमिनेशन मेथड के लिए मैं उसको Yes, ऐड sir. करूंगा या सब्ट्रैक्ट? मुझे ये बता दो बस. अगर मैं इसको इलिमिनेशन Add. क्या करेंगे? Adding करेंगे. वाई? Sir, because there is minus y in the first equation and second equation there is plus y. वेरी So नाइस. then we add then y and y. वेरी गुड. तो हम यहाँ पे इक्वेशन को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारे पास कोफिशिएंट तो इक्वल है बट साइन डिफरेंट है. यस. ओके. Yes, sir. ओके. नाउ आप इजीली कर लोगे. अब लास्ट क्वेश्चन है और हमारे पास ओनली 5 मिनट्स और है ना. तो अभी लास्ट क्वेश्चन भी आपको कैसे करना है. देखो, हमको डायमेंशंस एक को x मीटर मान लेनी है और दूसरे को y मीटर मान लेनी है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा हमारा? Yes, लेंथ sir. इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ये X, होता है व्हाट इज X एरिया? multiply by y. यस. तो ये हमारा एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ. राइट? Yes, sir. तो इट मींस Yes, क्या हो sir. जाएगा? xy मीटर स्क्वायर. xy Yes, हमने मानी ना, लेंथ इज इक्वल टू x मीटर. तो ये हमारा xy क्या आ जाएगा? Yes, sir. मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया. नाउ हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं. इफ इट्स लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, इट मींस व्हाट? x minus 5. X minus 5. प्लीज X minus बीच में नहीं बोलेंगे कोई. ओके. नाउ ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, इट मींस y plus 3. ओके. दैट इज इक्वल टू व्हाट? XY minus 9. यस, वेरी नाइस. जो एरिया था गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, इट मींस xy minus 9. अब जब हम इसको दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे यहाँ पे,
तो ये एक्स वाई रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. वेरी गुड. Now similarly you can form the second equation by using the second condition given here. Understand? Now form Yes, the sir. second equation. Yes, sir. Without any disturbance, please Yes, sir. unmute your mic and write in a chat box. What is the second equation? Directly नहीं लिखनी equation को, पूरा xy की form में लिखो. क्या equation आएगी? बहुत easy है. If we increase the length by 3, फटाफट लिखो. वेरी गुड. x प्लस 3 एंड ब्रिथ को भी इंक्रीज कर दिया. y प्लस 2. वेरी गुड. तो हमारा एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया. दैट इज इक्वल टू 67 या xy प्लस 67 प्लस xy. यस, वेरी गुड. Yes. Okay, very nice. तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके. नाउ दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 3.5. ओके. ओके, थैंक यू.